یہ سوچنا نہیں ہے کہ بھئی پیچھے کوئی خدا ہے وہ آپ کو جہنم میں آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا، مطلب وہ ایک قسم کا فریڈم ہے، آپ کا مائنڈ ہلکا ہو جاتا ہے۔ میرا مائنڈ بالکل ہلکا ہو گیا، لوگوں نے میرے ایریا میں میری طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں نے اسلام چھوڑا، میرے میں کوئی ریگریشن نہیں اس میں کہ میں نے کیوں کیا۔ میں آج انسانیت کو مانتی ہوں، ہیومینٹی اور اسپرچویلٹی بہت زیادہ ان دو میں۔ تم مسلمان نہیں ہو تو یہ نام بدل دو۔ تو مزے کی بات یہ ہے ایمبر جی، اب جب میں نے اپنا نام انڈیا سرسوتی جولی رکھا ہے، اب ان کو پرابلم ہو رہا ہے کہ اس نے یہ نام کیوں رکھا ہے۔ اس پہ جا کے لنکڈ ان، فیس بک، یوٹیوب، جتنے ایکس مسلم نے ایک نے ویڈیو بنایا تھا اس کا ویڈیو دیکھ کے سو اٹ ڈڈ گو اینڈ افیکٹ می کہ نہیں، میرا جو یہ چوائس ہے اسلام چھوڑنے کا یہ بالکل صحیح ہے۔ اللہ مجھ سے کوئی خفا نہیں ہوگا کیونکہ اللہ ہے ہی نہیں۔ تو دوستوں، میں امبر زیدی اور سواگت ہے آپ سب کا ہمارے آج کے خاص کارکرم اٹس ڈیبیٹیبل میں۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایکس مسلم پر میں ایک سیریز کر رہی ہوں، اور اسی کڑی میں آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص شخصیت جڑی ہے جن کو آپ امینہ سردار کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور حال ہی میں انہوں نے اپنا نام بھی بدلا ہے سرسوتی جولی۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ کیوں انہوں نے اسلام چھوڑا۔ نمسکار، بہت بہت سواگت ہے آپ کا۔ نمستے، نمسکار، شلوم، ہیلو، ہائی آپ سب لوگوں کو، اینڈ ایمبر جی تھینک یو فار ہیونگ می، شکریہ آپ کا۔ شکریہ آپ کا کہ آپ آئیں۔ اور سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اسلام کیوں چھوڑا؟ کیا وجہ تھی کہ آپ کو اسلام چھوڑنا پڑا؟ فرسٹ آف آل ایمبر، میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا اسلام چھوڑنے کا۔ مزے کی بات تو یہ ہے، فرسٹ آف آل جب یہ میرا جو کہتے نہیں ہے ایک دھیان تھوڑا سا گیا اسلام اور مسلمانوں کی طرف دونوں، وہ تھا جب میرے ملک میں اسکینڈینیویا میں ایک نے محمد کی میسنجر محمد کی ڈرائنگ کی تو گاڑیاں جلی تو برا اشر ہوا۔ تو میں مسلمان ہوتے ہوئے میں نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، ان کو تو کرنا نہیں چاہیے ریگارڈلیس۔ خیر وہ ایک سوچ تھا، کہتے نہیں دانا چلے جاتا ہے دماغ میں۔ اس کے بعد جو ہے جب میں فیس بک پہ آئی کافی سالوں بعد، تو میں نے دیکھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد جو ہے وہ پیڈوفائل ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا بول رہے ہو تم لوگ کہ وہ پیڈوفائل ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ وہ پیڈوفائل ہے؟ مطلب ان دا سینس کہ اس نے بچی کے ساتھ شادی کی ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہارے حدیثوں میں لکھا ہے۔ میں نے کہا حدیث پھر کیا ہے؟ اب جب میں سارا ریفرنس لے کے گھر گئی، میں نے کہا یہ کیا حدیث ہے، از اٹ ریئل؟ تو سب سے پہلے پتا چلا کہ یس یہ حدیث ایگزسٹ کرتا ہے، اور صحیح البخاری صحیح مسلم دے آر آتھینٹک۔ تو جب یہ کنفرم ہوا تو میں نے کہا میں نے ان حدیثوں کو نہیں ماننا، بیکاز دے آر ڈرٹی، دے آر بلاسفیمک ٹورڈز میسنجر محمد۔ دیٹ واز دا ٹائم کہ میں نے حدیثوں کو لے کے اپنے ہاتھوں سے مطلب دھو دیا اس کو۔ اٹ واز اراؤنڈ آئی تھنک 2016 پلس مائنس ایسے کچھ تھا، وہ میں نے ادھر ختم کر دیا۔ شاید اس سے پہلے کی بھی بات ہوگی یہ، مگر خاص اراؤنڈ 2016 آئی تھنک پلس مائنس، اور اس سے تھوڑا سا پہلے کیا ہوا کہ میں کسی کو جانتی ہوں، وہ ایکس مسلم ہے، بہت ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا اسلام چھوڑ دیا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے حج پہ جا کے میں نے چھوڑا ہے۔ ارے میں نے کہا یہ حج پہ جا کے تو انسان اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، تو آپ نے، میں نے کہا تم نے چھوڑ کیسے دیا؟ تو اس نے مجھے کچھ وجوہات بتائے، تو وہ میرا نا ادھر دماغ میں پھنس گیا۔ ناؤ آئی وانٹڈ، میں چاہتی تھی کہ میں اس کو بھی پروف کروں کہ وہ غلط ہے میں صحیح ہوں، کہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ خیر میں اپنی اس جرنی میں نکل گئی کہ اس کو پروف کروں کہ دیکھو تمہارا یہ تھیوری صحیح نہیں ہے، دیکھو یہ اس طرح سے ہے، اور اسلام میں یہ سب کچھ ہے، اور اس طرح سے ایوری تھنگ از اویلیبل۔ مگر جتنا میں قرآن میں جاتی گئی، جتنا ڈوبتی گئی، ایسے کچھ سامنے آئے چیزیں جس چیز سے میں ریڈی نہیں تھی۔ آئی واز لائک کمپلیٹلی بیفلڈ۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں حج کے اوپر آ رہی تھی، حج کے اوپر ایمبر جی قرآن میں کچھ کلیئر نہیں لکھا کہ کتنا آپ نے چکر مارنا ہے خانہ کعبہ کے، کیا اس کے مطلب کیا کیا چیزیں کرنی ہے خانہ کعبہ جا کے، کچھ نہیں لکھا۔ نماز کے بارے میں کچھ کلیئر نہیں لکھا، روزوں کے بارے میں کچھ کلیئر نہیں لکھا،
basically bits and pieces डाली हुई है, and then nothing is clear. And then I realized everything जो थोड़ा बहुत जो लिखा भी है pieces by pieces हदीसों में लिखा हुआ है, पूरा in one go नहीं लिखा, उधर भी pieces and pieces में लिखा हुआ है. तो जब ऐसे चीज मैंने पढ़ना शुरू किया, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे गई, तो एकदम से मुझे ऐसी चीजें आने लगी सामने जैसे कि इस्लाम सही है नहीं, वो इस्लाम नहीं है जो मैं समझती थी, अल्लाह मर्सीफुल नहीं है जो मैं समझती थी, अल्लाह ऑल नोइंग नहीं है जैसे मैं समझती थी, अल्लाह गफूर रहीम नहीं है जैसे मैं समझती थी, लेडीज के हकूक नहीं है जैसे मैं समझती थी, इस्लाम में इंसानियत नहीं है जैसे मैं समझती थी. मैंने अंबर जी अपना एक इमेजिनेटरी वो इस्लाम बना के रखा हुआ था मैंने, एज अ एक्सट्रीम लिबरल मुस्लिम, मॉडरेट मुस्लिम. बट आई रियलाइज दैट इज नॉट द रियलिटी. चाहे मैंने कितना उसको टाइट क्यों ना पकड़ा हो, मगर वो रियलिटी है ही नहीं. सो इन द बिगिनिंग ऑफ 2020 जनवरी मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोना लीव. और मैं बहुत 4 साल तकरीबन मैंने लगाए थे प्लस माइनस, मगर वो इतना मजबूत हो चुका था मुझ में कि वो इधर से उधर हो नहीं सकता था, इतना पक्का हो गया था, क्योंकि मैंने इतने प्लेटफॉर्म्स पे जाके लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, जितने एक्स मुस्लिम ने एक वीडियो बनाया था उसका वीडियो देख के, सो इट डिड गो एंड अफेक्ट मी कि नहीं, मेरा जो ये चॉइस है इस्लाम छोड़ने का ये बिल्कुल सही है, अल्लाह मुझसे कोई खफा नहीं होगा क्योंकि अल्लाह है ही नहीं. तो ऑल द डाउट्स दैट वर देयर, कोई भी जो सोच था वो सारा क्लियर हो गया. आसमान कहते नहीं जैसे साफ हो जाता है, ऐसे पूरा साफ हो गया. और जनवरी 2020 के फर्स्ट वीक में मैंने छोड़ा. बट एम्बर आई वाज रियली क्राइंग, बहुत रो रही थी मैं उस दिन, अकेला फील किया मैंने रात के 12 बजे अपने आप को, नॉट बिकॉज जस्ट अकेला बट बिट्रेड, कि मैंने इस पे इतना यकीन किया इतने साल, एंड आई ट्रस्टेड, मैंने अल्लाह पे इतना एतबार किया, एंड नो वंडर कि अल्लाह मेरे रेस्क्यू के लिए कभी नहीं आता था जब मैं तकलीफ में होती थी. तो छोड़ के बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए. आई फेल्ट वेरी मच रिलीफ चंद दिन बाद. आपके अंदर जब ये सवाल उठ रहे थे तो आपने किसी आलिम या किसी से इन सवालों को, अपने इनके सवालों के जवाब लेने की कोशिश की कि जो सवाल उठ रहे हैं आपके अंदर? मैं पहले, आप यकीन करो, इट इज सो फार आउट, पहले मैं डॉक्टर साले जो कि भी एक इमाम हैं, बहुत वेल नोन ऑनलाइन, और जाकिर नाइक, आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस, जाकिर नाइक को फॉलो करती थी, मुफ्ती मेंग शेख को फॉलो करती थी, खास तौर पे जाकिर नाइक, लाइक यू नो ही हैड ऑल द आंसर्स, जबरदस्त आंसर होता था. मगर जब मैंने ये जर्नी शुरू की तो मैंने अपने आप को कहा मैं किसी मुल्ला मुफ्ती को नहीं सुनूंगी, किसी को भी नहीं सुनूंगी, ये मैं बिल्कुल कहते नहीं न्यूट्रल होके मैं मालूम करूंगी कि मेरा इस्लाम क्या है. और मेरा तो सबसे पहले एम्बर जी इरादा नहीं था छोड़ने का, जब भी ये, बिकॉज आई वांटेड टू लर्न टू टेल माय फ्रेंड, कि अपने दोस्त को बताऊं कि भाई इस्लाम ऐसे, मगर मुझे किसी मुल्ला की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए थी, मुझे खुद करना था. मैं खुद भी तो आखिर मुसलमान थी, मैंने कहा मुझे आना चाहिए, मुझे एक मुफ्ती की, क्योंकि एक मुफ्ती की 4 जुबान, तो मैंने कहा मैंने मुफ्ती से नहीं करना, मैं खुद मुसलमान हूँ, मुझे अपने दीन के बारे में पता होना चाहिए. तो जब मैंने ये रास्ता थामा तो पता चला कि भाई तू तो रास्ते से ही निकल रही है. रात को बैठ के कहती थी अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, ये कहती थी एम्बर कि अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, मुझे सच्चाई दिखा. सच्चाई के पीछे गई थी मैं, एंड आई एंडेड अप लीविंग इस्लाम. इट वाज नेवर द प्लान, ये कभी मेरा सोच तक नहीं था, मगर हाँ दरमियान में मैंने देखा कि मेरा डायरेक्शन बदल रहा है, तो वो मुझे परेशान करता गया. मैं बोलती गई अल्लाह मुझे रास्ता दिखाओ, अल्लाह मुझे रास्ता दिखाओ, बिकॉज आई कुड फील द फियर, कंफ्यूजिंग, कि ये रास्ता ये तो बदल गया पूरा. तो आखिर में यही हुआ कि मैं हट गई. अभी आप क्या मानती हैं, आपका फेथ क्या है, क्या प्रैक्टिस करती हैं, कौन सा धर्म प्रैक्टिस करती हैं? मैं आज इंसानियत को मानती हूँ, ह्यूमैनिटी और स्पिरिचुअलिटी, बहुत ज़्यादा इन दो में हूँ मैं, और किसी खुदा को नहीं मानती, बट आई डू अंडरस्टैंड देयर इज अ क्रिएटर एंड क्रिएटर्स, देयर आर मैनी नॉट वन. मगर मैं उनको नाम क्यों नहीं देना चाहती, क्योंकि उनको मैंने देखा नहीं है, बट आई डू बिलीव देयर आर सम पावरफुल क्रीचर्स, कोई है ऊपर जो कि कंट्रोल कर रहा है 100%, बट आई डोंट बिलीव इन वन, देयर आर मैनी. और मैंने थोड़ा सा भी नोट किया कि आई एम इनटू कॉम्बिनेशन ऑफ बुद्धिज्म एंड चंद चीजें, few things from Sanatan. So there are things I like, you know, meditation, योग, rebirth, karma. इस karma में तो मैं बहुत believe करती हूँ, you know. So in that sense,
मैं थोड़ा सा ना इन दोनों के दरमियान हूँ, मगर आई विल से द रीजन आई डू नॉट से कम्प्लीटली सनातन, कम्प्लीटली बुद्धिस्ट, क्योंकि उनके पूरे उनके वैल्यूज को मैं नहीं मानती 100%. सो जब मैं एक चीज को 100% नहीं मानती तो इट्स नॉट फेयर टू कॉल योर सेल्फ समथिंग. तो इसीलिए मैंने ये कहा है कि आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी, कि सबके राइट्स एक होनी चाहिए, सब हम लोगों को एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, और स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज सो मच अबाउट योर सेल्फ. आपने जब ये आपका अकीदा बदला तो आपके परिवार का क्या रिएक्शन था ये सब जानने के बाद कि आप इस राह पे चल पड़ी हैं? तो क्योंकि एक मुस्लिम फैमिली में ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अकीदा बदल लें अपना. उसमें तो ये हुआ क्योंकि मैं तो एक प्लेटफॉर्म पे पहले गई थी बाय चांस, हालांकि मेरा मकसद नहीं था, मगर 3 दिन के बाद पूरे पाकिस्तान को पता चल गया. ठीक है, 3 दिन के अंदर अंदर जब मैं उस प्लेटफॉर्म पे लाइव गई थी और मुझे पता नहीं था, तो बड़े जोर का बैकलैश आया, बिकॉज आई वेंट पब्लिक, इट वाज वायरल, इट वाज गोइंग वायरल. तो द रिजल्ट वाज दैट दे लेफ्ट मी, मतलब दे वर टोल्ड टू कि मेरे साथ डिस्कनेक्ट कर दो. और चंद दोस्त खोए मैंने बिकॉज आई लेफ्ट इस्लाम. लोगों ने मेरे एरिया में मेरी तरफ देखना ही छोड़ दिया. हेलो तो दूर की बात, स्माइल करना तक छोड़ दिया, जो पहले फिर भी स्माइल करते थे. तो आई लॉस्ट लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, बहुत से लोगों को खोया मैंने. मगर मैं ये भी कहूंगी एम्बर जैदी कि पाया मैंने बहुत है इन रिटर्न, कि आई डू नॉट रिग्रेट एनी ऑफ इट. मैंने बहुत से प्यारे दोस्त मतलब मुझे मिले इन रिटर्न, तो आई रिग्रेट नथिंग. आपको जब आपने बताया जैसे कि आप एक प्लेटफॉर्म पे गई थी और आपने पब्लिकली ये सारी बातें कही थी, उसके बाद आई एम श्योर आपको धमकियां भी आई होंगी आसपास के लोगों से या कहीं और से दूर से. They were more like धमकी in that sense नहीं था, मगर इतना था spitting, other disrespectful चीजें, behavior देखना एक अजीब तरीके से. यूं थ्रेट्स नहीं आई है मुझे, मगर ये मैं कहूंगी कि जब मैंने अपने चैनल पे लाइव्स करनी शुरू की तो उसके आई थिंक चंद दिन बाद एक ने मुझे इतना कहा कि अगर आप कभी हमारे सामने आई तो हम आपको 3 चांसेस देंगे, उसके बाद आपको मतलब मरना होगा, वी हैव टू किल यू. तो बाद में मुझे किसी ने बोला कि यू हैव टू टेल द पुलिस अबाउट इट, यू हैव टू टेक इट सीरियसली. तो मैंने नहीं लिया था उस चीज को सीरियस कपल ऑफ डेज. उसके बाद फिर मैंने ज़ाहिर है एक फाइल मतलब बनवाई मैंने उसके ऊपर, और फिर बाद में मुझे कुछ पता भी चला उस बंदे के ऊपर, मगर ये कि आई डिड टेक इट सीरियस देन, क्योंकि शुरू में मैंने इसको उतना सीरियस नहीं लिया जब तक मुझे एक फ्रेंड ने बोला यू हैव टू मेक अ कंप्लेन, एंड देन आई डिड मेक अ कंप्लेन. तो ये एक ऐसे इंसिडेंट हुआ था. और दूसरा एक दफा हुआ था कि चैनल पे उसने मुझे इतना बोला मुझे कि हाँ, कि रिलीजन कहता है, इस्लाम कहता है कि ये वाजिब कत्ल है अगर इसने इस्लाम छोड़ा. तो इस तरह से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आए थे मुझे. सोशल मीडिया पे आप काफी पॉपुलर हैं, तो सोशल मीडिया पे भी इस तरह का आपको बैकलैश आई एम श्योर मिलता होगा फेस करने के लिए. बहुत बहुत ज्यादा देखा मैंने, स्पेशली व्हेन आई स्टार्टेड लास्ट ईयर. दे हैव बीन सो बिजी. एक तो मॉकिंग करते हैं, दूसरा चैनल बंद करने के चक्करों में होते हैं. सो दे आर वेरी मच थ्रेटन्ड बाय मी एज वेल, क्योंकि मैं एज अ वुमन इस्लाम को छोड़ के चेहरा दिखा रही हूँ, ब्लंटली बात कर रही हूँ, सामने हूँ. तो दैट क्रिएट्स सम सॉर्ट ऑफ फियर, एक किस्म का खौफ अंदर आने लग जाता है कि ये एक लेडी के तौर पे कितने और लेडीज को भड़का सकती है. इन अ वे शी कैन बी अ इंस्पिरेशन. अभी आपने हाल ही में नाम अपना बदला है और काफी इंटरेस्टिंग नेम है इंडिया सरस्वती जोली. ये क्यों ये इस तरह का नाम चुना, क्या इसके पीछे आप नाम चुनने की कहानी आप थोड़ा सा बताएं इसके बारे में. डेफिनेटली. मैं जब यंग भी थी 12-13 साल की एम्बर, तो आई न्यू देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद माय नेम, आई कुड सेंस इट, मगर मैं कुछ कर नहीं पा रही थी बिकॉज छोटी बच्ची क्या कर सकती है ना, माँ बाप के हाथ में सब कुछ होता है. तो जब ये मुझे भी रिसेंटली चांस मिला, बिकॉज मैं न्यूमरोलॉजी के कोर्स में हूँ इस वक्त, आई एम स्टडीइंग बिकॉज आई एम वेरी मच इनटू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इंटरेस्ट है. तो जब न्यूमरोलॉजी में आई तो मुझे चांस मिला, मैंने कहा ओए नाउ इज द मोमेंट टू चेंज द नेम. तो जब नाम के प्रोसेस में आई तो पहले हफ्ते में मैंने कुछ नाम चुने, तो मैंने अपने न्यूमरोलॉजिस्ट को भेजा, तो उसने कहा नो दैट्स नॉट गुड इनफ, यू हैव टू टेक मोर टाइम. एक हफ्ते के अंदर कोई तो जल्दी डिसाइड नहीं करता, सो अपना टाइम लो, अगर यही नाम था तो वापस आ जाना. मैंने कहा ठीक है.
फिर क्योंकि लिस्ट्स होते हैं नाम के जो कि अप्रूव्ड हुए हुए होते हैं, तो उन सब नामों के थ्रू जा रही थी, तो बाय चांस मुझे इंडिया बार बार कश कर रहा था, बार बार जब तक खींच रहा था, मगर फिर मैंने उसको टाल दिया। मैंने कहा लोग मतलब हालांकि मैं नॉर्मली लोगों का चुर्त नहीं मारती, मगर इधर आके मैंने सोचा, मैंने कहा इंडिया इज लाइक अ कंट्री नेम, सो पीपल माइट लाफ एट मी और समथिंग तो फिर मैंने उसको टाल दिया। फिर आखिर में मैं इतनी तंग आ गई थी, बिलीव मी, कि इट वाज सच अ डिफिकल्ट प्रोसेस, कि मैंने कहा मैं ब्रेक लेती हूँ, आई नीड ब्रेक। फिर एम्बर एक दिन मैं घर की तरफ काम से जा रही थी और ऐसी ट्रेन से बाहर ना अपने सोचों में खोई हुई थी, बाहर देख रही थी, एकदम मुझे जैसे ये नाम का आवाज आया, इट वाज लाइक somebody just told me and I realized this is the name। और मजे की बात यह है कि जितने नाम मैंने पहले भेजे थे अपने न्यूमरोलॉजिस्ट को, वन बाय वन विद somebody else, दूसरे के साथ बैठ के, तो वो एक्नॉलेज नहीं हो रहा था, मतलब वो अप्रूव नहीं हो रहा था। जैसे ये नाम मैंने इंडिया भेजा तो वो अप्रूव हो गया। सो आई नो दैट इन अ वे इट मीन्स समथिंग। फिर बाद में ये कहते नहीं, ये पजल गेम की तरह इन नामों को, क्योंकि इनका साउंड भी एक अच्छा होना चाहिए, ऑल टुगेदर व्हेन यू से इट इट शुड हैव अ गुड साउंड। और मुझे भी अपने आप को देखना चाहिए आईने में, डू आई लुक लाइक द नेम, दैट डज इट मैच माय पर्सनालिटी। तो इस तरीके से आई केम टू इंडिया। जब इंडिया का आया तो सरस्वती जोली ऑटोमेटिकली जो है ना वो मैच कर गया। पहले जो मेरे चॉइस थे वो था, सबसे पहला चॉइस तो मेरा था एलिजाबेथ, दैट वाज एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट्स। फिर विक्टोरिया, फिर देविया, लक्ष्मी, ये नाम मतलब आ रहे थे ना, राधिका, मगर वो मैच नहीं कर पा रहा था, वो हो ही नहीं रहा था। और एक टाइम पे मैंने सरदार को भी रखने की कोशिश की, मगर फिर मैंने कहा नहीं, आई नीड टू क्लोज द डोर्स ऑफ द पास्ट। पीछे जो भी मेरे लाइफ में हुआ है उसकी इट हैज टू फिनिश, मतलब इट हैज टू बी क्लोज्ड। ये नया शुरुआत है, दिस इज दिस न्यू पर्सन, न्यू आइडेंटिटी, न्यू पर्सनालिटी। मैंने उस पुराने, मैं तो नाम तक नहीं बोल सकती अपने मुंह से, कैन यू इमेजिन, मैंने वो पुरानी जो नाम वाली है उसको मैंने उस पूरी हिस्ट्री को मैंने पार्क कर देना है। नॉट फॉरगेट, जस्ट क्लोज द डोर्स एंड से दैट इज हिस्ट्री, लर्न फ्रॉम इट, सीखो, मगर उन दरवाजों को बंद कर दो, एंड दैट इज व्हाट आई हैव डन एंड आई एम वेरी हैप्पी। और बहुत से लोग मुसलमान जो थे, दैट्स द फनी पार्ट, मैं आपको एक बात बताऊं, कह रहे थे कि अपना नाम बदलो, तो मुसलमान नहीं हो तो ये नाम बदल दो। तो मजे की बात ये है एम्बर जी, अब जब मैंने अपना नाम इंडिया सरस्वती जोली रखा है, अब उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि इसने ये नाम क्यों रखा है। मुझे वही मुस्लिम अभी उसी नाम से पुकारते हैं जिस नाम से कहते थे कि उसको हटाओ अपने नाम से। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द रिएक्शंस, कि वो कह रहे हैं अब आप सनातनी हो गई हो, अभी आप ये हो गई हो। एंड आई एम लाइक व्हाई इज इट कि अगर मैं अपना नाम इंडिया सरस्वती जोली रखूं तो मैं हिंदू हो गई हूँ, अगर भाई एलिजाबेथ होती तो क्या मैं क्रिश्चियन हो गई हूँ। तो एम्बर जी, I feel people always have something negative to say regardless. ये बात तो सच है कि आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, तो हमें अपने जो हमने चूज किया है, जो हमारा एम है, जो हम करना चाहते हैं, उसी पे फोकस बिल्कुल हमारा रहना चाहिए। अभी आपने ये सारी आपकी जर्नी बताई, अब पहले की जिंदगी में और अब की जिंदगी में आप क्या बदलाव देखते हैं? क्या बदलाव सबसे बड़ा आपकी जिंदगी में आया है? No limitations, freedom, freedom to do anything you want. ये सोचना नहीं है कि भाई पीछे कोई खुदा है, वो आपको जहन्नुम में आपके साथ पता नहीं क्या कुछ करेगा, मतलब वो एक किस्म का फ्रीडम है। आपका माइंड हल्का हो जाता है, मेरा माइंड बिल्कुल हल्का हो गया। एंड देर आर लाइक नो लिमिटेशंस एंड आई डोंट लाइक टू बी लिमिटेड। तो उसमें जो है मैंने अपने आप को कंप्लीटली फ्री और मेंटली ईज फील किया, कंप्लीटली। मैं तो पहले ही इस कॉन्सेप्ट पे यकीन नहीं करती थी कि अल्लाह मुझे जहन्नम में डालेगा मगर अभी कंप्लीटली मुझे पूरा यकीन है कि देयर इज नो जन्नत और जहन्नम। मैं इस चीज को नहीं मानती। मैं मानती हूँ इसी दुनिया में ही आपको सब कुछ मिलेगा, यू डू गुड आपको अच्छा मिलेगा, यू डू बैड आपको इधर ही मिलेगा। तो आई फील वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट। मेरे जिंदगी में बहुत अच्छे लोग आए हुए हैं, वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त हैं, कि मैं किसी चीज के लिए भी किसी कीमत पे भी उसको बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ। सो माई लाइफ, मेरी जिंदगी आज बहुत ज्यादा खुशहाल है, हैप्पी है, मैं खुश हूँ। दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट, मैं खुश हूँ, क्योंकि एम्बर जी अगर मैं खुश नहीं होंगी मैं दुनिया में कुछ दे भी नहीं पाऊंगी। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ यू, मेरे साथ ही।
तो इन दैट सेंस मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस्लाम छोड़ा, मेरे में कोई रिग्रेशन नहीं इसमें कि मैंने क्यों किया। नाम बदल के तो मैं बहुत ज़्यादा मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि नाम बदल के मैंने देखा है कि so much positiveness has come in me. अभी आगे जिंदगी को लेकर क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं आगे? रिसेंटली तो अभी मैंने अपना जो फोकस किया है कि अपना एजुकेशन कंप्लीट करना, एंड मैंने अभी तक अपना पूरा 5 ईयर प्लान बनाया नहीं है। नॉर्मली मैं हमेशा 5 ईयर प्लान बनाती हूँ, वो अभी तक कहते नहीं है पेपर पे उतरा ही नहीं है। मगर डेफिनेटली माय गोल इज इन लाइफ कि टू हेल्प पीपल, टू डू समथिंग लोगों के लिए, नॉट थ्रू पॉलिटिक्स बट बाय बीइंग ऑन द ग्राउंड, जमीन पे, क्योंकि इस तरह से आप लोगों के साथ इन कांटेक्ट रहते हो, एंड अगेन उसमें लिमिटेशंस नहीं होती है, ठीक है। आप लोगों तक पहुंच सकते हो। सो अब उसमें भारत मेरे लिए क्या रोल देता है मुझे नहीं पता कि हाउ कम मेरा कैसे उनके साथ कांटेक्ट होगा, आई डोंट नो दैट कि होगा तो किस तरह से होगा। मेरे अपने मुल्क में भी कुछ मेरे प्लान्स हैं, सो आई हैव देयर आर थिंग्स, मगर मेनली मेरा जो फ्यूचर का जो प्लान है, इट इज टू हेल्प, टू डू समथिंग फॉर अदर पीपल, दूसरों के लिए। लोगों को कोई मैसेज देना चाहती है, कुछ कहना चाहती है लोगों से आप? डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू इस्लाम, तो मैं ये कहूंगी कि देखो, इस्लाम में इंसानियत नहीं है, ओके। जब दूसरे रिलीजनों को इंसान, दूसरे रिलीजन के लोगों को इंसान नजस कह सकता है, जैसे कि सूरह तौबा आया 28 में है कि आइडल वर्शिपर्स को नजस कहा जा रहा है। सो इट्स नॉट अ वेरी नाइस रिलीजन, ये बहुत रिस्पेक्टफुल दूसरों की तरह नहीं है, तरफ नहीं है, ये इंसानियत वाली नहीं है। और मैं ये भी बताऊं कि जो अगर समझता है कि इस्लाम महिलाओं को, मुस्लिम लेडीज को राइट्स देता है, तो मैं उनको ये भी बोल दूं, अनफॉर्चुनेटली दैट इज अ बिग फैट लाई, क्योंकि लेडीज को इस्लाम में मार सकते हो आप, सूरह निसा आया 34, शक के बेसिस पे आप मार सकते हो। और जो थोड़ा बहुत इस्लाम ने अगर हुकूक भी दिए हैं लेडीज को, तो मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि इवन इन पाकिस्तान, दैट एज वी स्पीक, तो पाकिस्तान में देयर इज समथिंग कॉल्ड हक बख्शिश। हक बख्शिश का मतलब कुरान के साथ शादी हुई जा रही है उधर 10,000 लड़कियों की हो चुकी है पंजाब सिंध में। ये आप लोग गूगल अप कर सकते हो, आपको ढेर सारा इंफॉर्मेशन जी, मैं मिलेगा। जानती हूँ जी, बिल्कुल। तो द व्यूअर्स के लिए ये कि आप लोग समझो कि बेशक जो ये लोग बात भी करते हैं उसमें कोई दम नहीं होता। सो बिफोर यू इवन थिंक, या अगर आपके सामने कोई दावा भी लेके आए इस्लाम का, प्लीज स्टडी कीजिए कुरान को, प्लीज स्टडी कीजिए हदीस को, और किसी मुल्ला को मत सुनिए, किसी के दावा को एकदम से ब्लाइंडली मत सुनिए, और एक्स मुसलमानों को जरा सुनिए कि उन्होंने क्यों छोड़ा। हम लोग मुस्लिम रह चुके हैं, हमने इस्लाम को पढ़ के छोड़ा है, हम लोगों ने इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा। सो वी आर एक्स मुस्लिम्स फॉर अ रीजन। सो प्लीज study it before you dive into it. Thank you. Thank you so much for joining and sharing your thoughts with the viewers. Thank you. Thank you. Namaskar. Jai Hind. Namaskar.